support of men also. Yes, please, please. Since you are from the Department of Hindi and you're the HOD also. Yeah, thank you. Now I would request our worthy principal ma'am to please present the sapling to our first guest, Madam Fozia Mughal. Thank you so much, ma'am. Now I would request Dr. Jyoti Parihar, ma'am, to present the sapling to Nazeem Akhtar, ma'am. I would now request Dr. Rajinder Kaur, ma'am, to present the sapling to Dr. Sushma Rani, ma'am. And towards the last, I request Adya Shalini ma'am to present the sapling to Professor Bhagwati ma'am. Hindi and English together. COE Jammu welcomes you to the 3-day seminar on the occasion of International Women's Day, and this time we are celebrating it under the theme of Break the Bias. So you are into the first day of the program, and today we thought we should celebrate this occasion through writing. How women can break the barriers, the prejudice, the biases through writing. And we were fortunate enough that we were able to invite women from different languages, and all of them are remarkable women poets, authors from different languages. First of all, I would like to welcome Madam Fozia Mughal. She is an eminent poet in Urdu language. We had also invited Santosh Nadan ma'am also, but yeah, she is from Kashmiri language. She was facing some problem because her relative is stuck in Ukraine. So we are with her in this hour of crisis, and we empathize with her. So, and then I also welcome Dr. Sushma Rani, again a very eminent women poet from Dogri language. She is also associated with Ministry of Culture. She has written drama, novels, short stories, and many poems. She has published widely, and besides this, she is an activist for the Dogri language. Next in line, we have Dr. Sarita Khajuria, a wonderful translator and a poet in Dogri language. I would recommend, since I have read her books, so her Hindi translations and Dogri translations are one of the remarkable books that are available in regional language. Thank you, ma'am, for joining us from Zaman Degree College, Bishna. We have Nazeem Akhtar, a very young poet from the language Gojri. And we direly need women who write in marginalized languages. Initially, she had started in Urdu language, but then she presented some of the poems in Gojri, and I and other listeners would always reiterate that you please continue writing in Gojri language only, because since you belong to the community also, you would be able to do justice with that language. And our minor languages are diminishing very fastly, and that is why United Nations organization has taken up multi-billion-dollar projects to save the minor dialects, because they are the creation of human beings. They are the discovery of human beings. इंटरेक्ट करते हैं, तो चलें आज उनके पेपर्स चल रहे हैं नेक्स्ट टाइम से। तो मैं जैसे कि मैम ने बताया कि हमें जब हम एम्पावर हो जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने आप के लिए बारे में नहीं सोचना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की। तो मेरी 2 कहानियाँ इसी पर है। मुझे आमतौर पर कहते हैं कि ये मर्दों के खिलाफ लिखती है, लेकिन वो मर्दों के खिलाफ नहीं होता है, वो सारा कुछ औरत के हक में होता है। कि आज भी अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम पूरी तरह से एम्पावर्ड नहीं हुए हैं। आज भी हमारे सिस्टम में वो बातें मौजूद हैं जो बातें वो एक अनपढ़ से एक्सपेक्ट करते थे। वो जो पेरेंट्स हैं या इन लॉज हैं, एक लेडी से वही एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसा कि अगर हम बाहर के कहीं होता है
वहाँ पे जो जितना, अगर वुमेन एम्पावर की बात करें तो जो वहाँ पे काम करते हैं वो आ जाते हैं घरों में, जिसका काम है मेल आए फीमेल आए अपने हिस्से का काम करके निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम कहीं पे भी कितने भी प्रोग्राम्स हम कर लें, कितनी भी जगह पे हम एंगेज होंगे, लेकिन लास्ट पे जिस वक्त हमको घर जाना है तो वो सारे बर्तन हमें खुद ही समेटने पड़ते हैं, और वो सारे कपड़े चाहे कुछ भी है खुद ही धोने पड़ते हैं, मैनेज करना पड़ता है हम लोगों को कि हमें और ज़्यादा रखने पड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जिस वक्त हम फाइनेंशियली साउंड होते हैं तो हमें अपने लिए फिर ज़्यादा देखना पड़ता है कि वो सारी हमें जो सुविधाएं हों कि जो हम अपने आप को दें। तो असल में वही एम्पावरमेंट होती है, हमारे लिए ओवरबर्डन भी हो जाता है। तो ये चीज़ें समझने के लिए हमें जो साथ में आज के मेल तो समझ लेते हैं, लाइफ पार्टनर तो समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेके चलते हैं कि अब इसको ये भी करना था। अब एक को दुआएं देती हैं, कोई भी सलाम करें तो सलाम का जवाब दुआ से देती हैं, और वो दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह ताला इनकी टेंशन को दूर करें। इनकी बेटी यूक्रेन में है, उनकी फैमिली पूरी है, अपनी बेटी, रिलेशन तो दूर की बात होती है, अपनी बच्ची है इनकी वहाँ पे, उनके बच्चे वहीं पे वो सेटल हैं, तो वो परेशान रहती हैं। तो अब लेकिन फिर भी इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि इतने मर्दों के बीच में मुझे अगर किसी ने मर्दों के साथ, जैसे वहाँ पे तो सिर्फ हम ही दो औरतें दिखती थी, जब भी यहाँ पे कोई पोइट्री सेशन होता था, चाहे कश्मीरी का हो चाहे उर्दू का हो, कहीं पे भी, तो हम दो ही, हजारों मर्द होते थे और हम दो, और इनके सहारे में चली हूँ, इनके सहारे में यहाँ पहुँची हूँ। क्योंकि मर्दों की उसमें अगर मैं अकेली होती तो अकेली होती हूँ आज भी तो इनकी वजह से होती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रखा, इन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया, साथ दिया। अब जहाँ पे अपने रिश्तेदार अपने सगे छोड़ देते हैं, वहाँ पे आपको ऐसे लोग जो हैं वो आपके साथ मिलते हैं, आपको सहारा देते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया है, लेकिन वो फिर 2007 में मैंने किया। उससे पहले ऐसे गुरु मिले थे या मेरे पिताजी थे जो बात बात पर दोहराते थे, मुझे तो समझ में नहीं आता था ये क्या है क्या शुरू। कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो है ना वो नहीं ऐसे डायरेक्ट जैसे हम आज समझाते हैं बच्चों को, और वो फिर हमें पसंद भी नहीं करते हैं, नफरत हमसे करते हैं। ऐसा हो कि ये माँ कहीं 10 दिन कहीं जाए तो हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे उस टाइम। वो एक किस्म का डिसिप्लिन था। जो हम बोलते हैं आज हम पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, आप मैंने श्रीमद् भगवद गीता का 2nd अध्याय का वो 37 श्लोक है, हतो वा प्राप्से स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कुन्तेय युधाय कृतनिश्चय। वो कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये जंग है, हमारी जिंदगी जंग है। तो अगर इस जंग में लड़ते लड़ते आप मर जाओगे तो क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा। नहीं तो आपको यहाँ उठना है, कमर कसना है, काम करना है। वो कौन से काम है, वो कौन से कर्म है, कर्तव्य कर्म है कि अगर हम इस पर चलेंगे हमारा घर जो है ना वो स्वर्ग बनेगा। क्योंकि हमें ना मर्द देखना है ना औरत, हम आए हैं इस दुनिया में हम एज सेवक। आप तो बोलते हो ना, अगर हम स्कूल में भी जाएंगे आप कैसे करते हो, हेलो, कोई बात नहीं करना है, हमें सक्सेस मिलती है। व्यवहार भी जो है ना, व्यवहार 2 है। व्यवहार इस संसार में जो हम व्यवहार करते हैं वो एक, और उसके बाद हमें ये तो याद रखना है, हमें खुदा को याद रखना है, भगवान को याद रखना है, वो व्यवहार। और उसके ज्ञान भी 2 है, व्यवहार ज्ञान। किसी भी घर में आप जाओ कि ऐसे मंडे पे इन्होंने सेमिनार रखा है 3 दिन का। आज का था, इनको पोइट जितने भी पोइट्स हैं जम्मू के, तो उनको बुलाया था उर्दू के लिए। मुझे यहाँ पे दावत दी थी, संतोषा नादान मैम को कश्मीरी के लिए, और भी डोगरी में भी सभी लैंग्वेजेस के पोइट्स को बुलाया था ताकि उनके साथ इंटरेक्ट भी करें और बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ वो सभी बातचीत कर लें और पता चले कि औरत जो है डिफरेंट उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है। आज की जो वर्किंग लेडी है, मल्टीटास्किंग जो काम करती आई है और कर रही है, तो उनके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर कर लें और साथ में अपनी पोइट्री जो उन्होंने वुमेन से रिलेटेड जो कुछ भी उनकी अपनी लिखी हुई हैं या स्टोरीज़, वो भी उन्होंने मुझे
मैम पहले की फेमिनिज्म को देखा जाए और आज के, तो आप क्या फ़र्क देखते हैं? पहले तो जो कोई भी लिखती थी तो वो नाम बदल के लिखती थी और डर के लिखती थी, मतलब उनको डर होता था समाज का। आज इतनी चेंज तो आ गई है कि जो कोई लिख रहा है अपने नाम से लिख, इतना कॉन्फिडेंस तो उसको है कि वो लिख रही है। चाहे हमसे पहले जब हम 70s की बात करें या 60s की बात करें तो बहुत कम खवातीन लिखती थी वो, लेकिन आज जो लिखती हैं तो वो अपने नाम के साथ लिखती हैं। और मैम एक चीज़ लास्ट आपसे पूछना चाहेंगे, आप विदेशी लैंग्वेज के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो यू आर फाइटिंग फॉर अ लैंग्वेज। जी, जी, तो language हाउ दिस फाइट इज गोइंग? ये बहुत ठीक चल रही है क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और स्कूल में हूँ। वहाँ पे हमें बच्चे तो डिफरेंट लैंग्वेजेस से आते हैं, और सबसे बड़ी बात जो है कि मैं एक ऐसी जगह पोस्टेड हूँ जहाँ पे सभी लैंग्वेजेस के बच्चे हैं, जैसे गोजरी है, पहाड़ी हैं, कश्मीरी, डोगरी, सब बच्चे हैं। तो उनके लिए मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि उनको बेसिक नॉलेज उनको लिखने की और पढ़ने की आ जाए, कि अपनी मातृ ज़ुबान के लिए, मदर टंग के लिए, मदर लैंग्वेजेस के लिए, कि वो उससे भी जुड़े रहें, अपने जड़ों से भी जुड़े रहें और आगे भी। और सभी जो हमारी जम्मू कश्मीर की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन कुछ तक भी हम पहुंच जाएं तो ये हमारा मिशन है, तो हम उनके साथ। ये थे फौजिया मुगल मैम, जिन्होंने लैंग्वेजेस के लिए बहुत काम किया है और अर्सफल डोडा से ये आते हैं, फार फ्लंग एरिया से ये आते हैं और किस टफ कंडीशन से ये आए हुए हैं। तो इनकी जर्नी है वो काफ़ी सराहनीय है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फीमेल और आगे आए और आगे बढ़े और मिसाल बने सोसाइटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमें याद रखते हैं, और इससे भी प्रेरणा मिलती है सभी औरतों को, सभी बच्चियों को। जब वो देखते हैं, मेरी स्टूडेंट भी जब मुझे देखते हैं तो उनमें भी वो फिर झिझक ख़त्म हो जाती है। तो वही झिझक हम ख़त्म करना चाहते हैं कि लड़कियां जो हैं सेल्फ सफिशेंट बन जाएं, सेल्फ जो अपने उस पर उनको फ़ख्र हो, अपने आप पे फ़ख्र हो कि वो ऐसे काम करें। जी शुक्रिया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये 3 डेज़ का प्रोग्राम है। इसमें फर्स्ट डे आज हमने डिफरेंट पोइटस को बुलाया है और उन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी सेल्फ कंपोज्ड जो पोइम्स थी वो रखी हैं, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कहा गया है। वुमेन का जो भी सोसाइटल उनको हक चाहिए वो अपने हक के लिए बोल रही हैं। और ये 3 डेज़ का प्रोग्राम है, 3 डेज़ चलेगा। उसके बाद ये कंक्लूजन में हम कुछ अपनी रिकमेंडेशंस भी देंगे और वो रिकमेंडेशंस हमारी गवर्नमेंट तक जाएंगी कि वुमेन एम्पावरमेंट में वो कहाँ हमारी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हीर बिलब सिंह कदे खड़ी मैदान में डट गए, फिर रांझागी हीर बिलब सिंह, यही इंदिरा यही टरीसा, यही इंदिरा यही टरीसा, मलाला तैबे नज़ीर बिलब सिंह, यही इंदिरा यही टरीसा, मलाला तैबे नज़ीर बिलब सिंह, इनकी चोली की दरसगामा। शेर सुनिएगा कि इनकी चोली की दरसगामा पीर वली ते फकीर बिलब सिंह, इनकी चोली की दरसगामा पीर वली ते फकीर बिलब सिंह। खुदारा यो ना जुर्म कमाओ, खुदारा यो ना जुर्म कराओ, ना इसना कोखमा मकाओ, खुदारा यो ना जुर्म कमाओ, ना इसना कोखमा मार मुकाओ। या नहीं होसे ते जग नहीं होसे, या नहीं होसे ते जग नहीं होसे, जागो उठो होश में आओ। या नहीं होसे ते जग नहीं होसे, जागो उठो होश में आओ। या खुश तै सबकी खुशहाली। जब तक एक घर में एक औरत की मुस्कुराहट नहीं गूंजेगी, उस घर में कोई खुश नहीं रह सकता। तो या खुश तै सबकी खुशहाली, हर एक कन्ना यो समझाओ। या खुश तै सबकी खुशहाली, हर एक कन्ना यो समझाओ। इसके हाथ क्यों खाली डोई, इसके हाथ क्यों खाली डोई, इसके हाथ में कलम फड़ाओ, इसके हाथ क्यों खाली डोई, इसका हाथ में कलम फड़ाओ। काल श्री नहीं कट किसे थे, कह गया लोग सियाना है, सिर्फ रसोई था नहीं इसको, ये सब राग पुराना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद छोड़ियो तेना याद भी रज रज करती रही, तेरो हुक्म हो ते पुला छोड़ियो, ओन कर्ज नहीं कोई सी
पंछी कैद थो हिजरा मां एक पंछी कैद थो हिजरा मां ओ खोल के पिंजरोड़ा छोड़ियो एक पंछी कैद थो हिजरा मां ओ खोल के पिंजरोड़ा छोड़ियो तेरा शहर की तत्तियां हवा माने तेरा शहर की तत्तियां हवा माने मेरी आसंग बूटो सुखा छोड़ियो तेरा शहर की तत्तियां हवा माने मेरी आसंग बूटो सुखा छोड़ियो तेरो दुख मेरो सोनो चांदी थो तेरो दुख मेरो सोनो चांदी थो रख दिल मां जंदरोला छोड़ियो तेरो दुख मेरो सोनो चांदी थो रख दिल मां जंदरोला छोड़ियो। देख रहे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जम्मू में आज हम आए हुए और 3 डे सेमिनार है। मेरे साथ शालिनी राणा मैम, डॉक्टर शालिनी मैम। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी स्वागत है कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो मैम what this event is about 3 days? This event is about celebration of International Women's Day and we have selected the theme Break the Bias and this is the day 1 and today we are meeting many authors from different languages और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि diverse views हमें women के मिल रहे हैं of different age groups के और अलग अलग भाषाओं के। तो आज हम वाकई में बहुत प्रसन्नचित्त हो गए और this is required. All the women should come together and develop a sisterhood and work for the progress of each other, not only each other but to bring gender sensitization also and obviously then only we'll have a peaceful and loving society. मैम एक चीज़ देखने को मिली कि जहाँ डोगरी को गोजरी अवार्ड दे रहे हैं, गोजरी को डोगरी दे रहे हैं, हिंदी को इंग्लिश अवार्ड दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने देखा हमेशा कॉन्ट्रडिक्शन रहता है लैंग्वेजेस के भी, डायलेक्ट्स के बीच और ग्रामर के बीच में। पहाड़ी से लेके जितना भी वर्सटाइल जम्मू कश्मीर का लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है आपने लाया, तो ये इंटरनेशनल वुमेन डे बना रही है, इंटरनेशनल लैंग्वेज डे। देखिए मैंने आपको बताया जैसे पहला दिन थ्रू राइटिंग हाउ कैन वी ब्रिंग चेंज और जब तक वुमेन लिखेगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। आज हमें पता चला उनके मन के व्यूज क्या हैं तो तभी दुनिया अवेयर होगी उसके बारे में एंड वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड वी हैव सच डाइवर्स लैंग्वेजेस। इतनी डाइवर्स लैंग्वेजेस मुझे नहीं लगता बाकी स्टेट्स में होगी जितनी पहाड़ी गोजरी कोटी सभी लैंग्वेजेस यहाँ हैं और लैंग्वेजेस का हमें सम्मान करना है। यही मल्टीलिंगुअलिज्म या डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है एंड वी नीड टू सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी। मैम आपसे एक सवाल कि आपने देखा कि यहाँ पे फेमिनिज्म की बात है, यहाँ पे वुमेन डे की बात है, आपको क्या लगता है कि कितना पुराना टाइम है और अगर कितना आज के टाइम में डिफरेंस है? आज हक और हकूक की बात करें, क्या औरतों को आज भी अपने हक हकूक नहीं मिल रहे? मिल रहे हैं, ज़रूर मिल रहे हैं और एजुकेशन इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। अगर एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो दम एम्पावर्ड हो सकते हैं और हम अवेयर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट हमने लीगल लेक्चर्स भी रखे हुए हैं, तो उसमें अगर पहला टाइम देखें तो आज देखें तो एजुकेशन से बहुत फ़र्क पड़ा है। इनफैक्ट वी हैव वुमेन स्टडीज़ एज ए सब्जेक्ट ऑल्सो, तो हम ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। मैम आपने जो आपकी यहाँ की लड़कियाँ देखी थी, जितनी भी लड़कियाँ स्टूडेंट होती है वो NSS में एक्सेल कर रही है, वो ट्रैकिंग में एक्सेल कर रही है, उसमें चाहे ऋचा सचदेवा हो और भी बड़ी सारी लड़कियाँ हो। आपको कैसा लगता है कि जब ये लड़कियाँ उठ के डिफरेंट जगह पर जाके कहीं टग ऑफ वॉर जीती है, कहीं मतलब लड़कों को पछाड़ के आगे निकलती है? देखिए ये नहीं है कि कोई कंपटीशन नहीं है कि हम कह रहे हैं कि लड़कों को पछाड़ रही हैं लड़कियां। हम सिर्फ चाहते हैं कि ये भी एक लॉट जो निगलेक्टेड था या जो कम, उसमें हमें अगर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो एजुकेशन में अगर लड़कियां कम हैं तो हम चाहते हैं कि उनको भी मिले। हमारा ये कोई वॉर नहीं है कि हम देखें उनको लड़कों को हरा रहे हैं लड़कियां आगे, ऐसा नहीं है। हम चाहते हैं ये अपने हिस्से की प्रोग्रेस करें। तो इट इज़ अबाउट इक्वलिटी व्हाट मैम सेड। आज हम बोलते हैं 33% औरतों को रिजर्वेशन, आज 33% में सर आप आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले सर थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न यहाँ यही है कि वट एवर आई हैव हर्ड इनसाइड, मैंने अपना एक ओपिनियन है, दिस इज ऑल माय पर्सनल व्यूज। मैंने ये चीज़ रियलाइज की है कि वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन डेवलपमेंट की जब भी बात होती है तो इट इज ऑलवेज इन कंट्रास्ट टू व्हाट दे हैव अचीव्ड इन कंपैरिजन टू मेन।
तो मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि वाई दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ विद मेन। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में इनको, मेरा ये मानना है कि इनको हमेशा ये देखना चाहिए कि व्हाट दे हैव अचीव्ड लास्ट ईयर, व्हाट दे आर डूइंग नाउ, व्हाट दे हैव टू डू इन फ्यूचर, बट नॉट इन कंपैरिजन विद द मैन। इट इज सेड दैट men are ordinary but women are special, तो आप उस चीज में बिलीव करते हैं? They are not just special, they are super special. They are the best creature on the earth. तो ये कहीं ना कहीं सर ने कवर अप किया शाम को घर जाने से पहले। तो मैम जिनकी हम डिबेट सुन रहे थे काफी देर से, और शी रिप्रेजेंटेड द फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स योर नेम मैम? कोकिला शर्मा। तो इनका नाम कोकिला है, शर्मा है, और नाम की तरह ये काफी मीठी है। अंदर हमने देखा कि आप काफी एग्रेसिव होकर बोल रहे थे, तो क्या आप उसके साथ टच करते? क्योंकि हमने देखा आप शादीशुदा, तो इस क्वेश्चन मंग Yeah, it's absolutely all right, and aggression is not actually part of my personality. It's just when I speak, I come into that front, and of course, my husband is very supportive, and I do not support anything that goes against. तो मैम आप यहाँ देखते हैं कि क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो पहले लड़कियाँ फेस करती थी और अब कहीं ना कहीं मतलब सोसाइटी में? There was a time when people used to say that women should remain closed inside a house. A woman who goes outside the house to do a job, the character was not considered very well. But today, situation has changed, times have changed, and we see women standing right here, reaching high levels. And I think today is a society, today is the norm, when we can actually say that women are not just equal, they are better than men. Why we think they are equal or below? They are better, they are doing much, they are excelling in everything. That is what we are. तो आपने देखा कि किस तरह इनके काफ़ी अच्छे थॉट्स थे कि डेट वुमेन आर बेटर इन एवरी फील्ड। तो मुझे भी लगता है कि सब अपना अपना पर्सनल ओपिनियन। आपको क्या लगता है कि इस कंट्री में इंटरनेशनल वुमेन डे की जरूरत है, जहाँ पे औरतों को वाकई में पूजा जाता है, कहा जाता है जहाँ औरत का पूजन होता है वहाँ पे देवता बसते हैं? तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में आकर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय।